Hello friends, welcome back. Welcome to Saral Maths. Today we are going to start three-dimensional geometry or 3D coordinate geometry. So the question arises, why we study 2D geometry. Okay, what is the need of 2D and what is the need of 3D geometry? So let us take a small theory and then we come to the practical concept. In 2D geometry, we consider only two axes. Okay, that is a point, that is a point lying in a plane only. Okay, in 2D geometry, we consider only two axes, that is a point lying in a plane only. Okay, okay, but in actual or real life, we do not we do not have to deal with points laying in a plane only. For example, for example, consider the position of a ball thrown in space at different at different points of time, or the position or the position of or the position of an aeroplane as it flies from one place to another place at different time during its फ्लाइट. ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप की जो सिचुएशन रहेंगी वहाँ पर हमें वी नीड हाइट फ्रॉम द फ्लोर. ओके, मीन्स जमीन से नीचे से जो फ्लैट प्लेन से उसकी हाइट भी कंसिडर करना पड़ेगा. नो, वी नीड हाइट ऑल्सो. ओके, सो सिमिलरली एक एग्जाम्पल देखते हैं. Similarly, if we were to locate the position of the lowest tip of an electric bulb hanging from ceiling of a
room or ceiling fan और सीलिंग फैन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनी ऑब्जेक्ट जो कि छत से, रूफ से हैंगिंग है. ओके, इन दिस केस वी will not only require perpendicular distances, from perpendicular walls. जो परपेंडिकुलर वॉल होगी रूम की, मीन्स उसको हम एक्स और वाई एक्सिस कंसिडर करते हैं, वहां से जो डिस्टेंस रिक्वायर होता है दैट इज इन ए ओनली 2D. बट यहाँ पर नॉट ओनली रिक्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम परपेंडिकुलर वॉल्स ऑफ द रूम, ओके, टू determine the position, that is location of the object, but also the height of the object from the floor of the room. Okay friends, so to determine the position of object but also the height, यहाँ पर हमें height भी required है, height of the object from the floor of the room is also needed. ओके, यहाँ पर जो वॉल से उसकी लेंथ और विड्थ है, मीन्स जो डिस्टेंसेस है वो तो रिक्वायर होंगे, बट यहाँ पर हाइट भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि अभी अपन स्पेस की बात कर रहे हैं. ओके, कोई भी चीज़ हैंगिंग है या कोई हवा में जो चीज़ है उसकी हाइट भी हमें रिक्वायर्ड होगी. ओके, देयरफॉर we need नॉट, यहाँ पर आपको नोट करना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें. देयरफॉर वी नीड नॉट ओनली 2 but 3 पैरामीटर्स और नंबर, जिसको हम नंबर से नोट करते हैं, और नंबर्स representing the perpendicular distances of the point from 3 mutually perpendicular planes. ओके, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन से इन इसी पॉइंट का ऑब्जेक्ट का हमें डिस्टेंसेस जो है 3 परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे. ओके फ्रेंड्स, now let us see how these planes intersecting and how this creates the octant. Okay friends, now let us see how 3 planes intersect each other and how they forms 8 octants.
सो इंटरसेक्शन ऑफ थ्री प्लेन्स. देखिए फ्रेंड्स, दिस इज माय फर्स्ट प्लेन. ओके, ये आपका एक प्लेन हो गया. दिस इज योर, दिस इज आवर second plane, and this is our third plane. तो ये थ्री प्लेन्स हैं. ओके, एंड these थ्री प्लेन्स ओके आर करस्पॉन्ड टू थ्री एक्सिस. दिस इज x axis, this is y axis, and this is z axis. Friends, here the two axes, that is x and y, are horizontal axes and y is the vertical axis. Okay, these two axes means x and y is same as in 2D coordinate system, but y is third axis which is perpendicular to these both axes. Okay, so इस टाइप से यहाँ पर हमारे पास तीन प्लेन से जो इंटरसेक्ट करते हैं आपस में. ओके, और यहाँ पर थ्री एक्सिस क्रिएट होती है अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग टू दिस प्लेन्स. तो हियर वी कैन राइट the three coordinate axes, the three coordinate axes or the three coordinate planes divides the space into 8 octant. Okay, ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो थ्री प्लेन्स है वो स्पेस को ओके 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट्स. अब देखिए फ्रेंड्स, कोई भी पॉइंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो किसी भी पार्ट्स में मीन्स ऑक्टेंट में हो सकता है, बट उसके साइन हमेशा डिफरेंट होंगे. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, द साइन ऑफ द coordinates of a point determines the octant. जो भी साइन रहेंगे, द साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट डिटरमाइन द ऑक्टेंट, कि वो जो पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है, वो किस ऑक्टेंट में है, ये कैसे पता पड़ेगा, उसके साइन से पता पड़ेगा. ओके, सो अब हम देखते हैं साइंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ओके अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेंट. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा मॉडल बनाया है, उससे आप इजीली समझ पाएंगे कि किस ऑक्टेंट में कौन सा साइन रहेगा. ओके, सो लेट अस सी द सिंपल मॉडल. देखिए फ्रेंड्स, इसको आप इससे टैली कीजिए. सो दिस इज माय पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ओके, ये मेरा एक जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है. जब इसको मैं अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करता हूँ तो इधर वो नेगेटिव जाएगा. सो दिस इज नेगेटिव एक्सिस एंड दिस इज पॉजिटिव एक्सिस. ओके, सिमिलरली दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस. ओके, एंड बिहाइंड दिस एक्सटेंड अगर हम इसको करते हैं तो ये हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगी इधर की साइड. ओके, दिस इज नेगेटिव एक्सिस. और ये जो है मेरा वर्टिकल जो एक्सिस है, दैट इज जेड एक्सिस. देखिए इस टाइप से आपको ये दिखेगा. ओके, ये देखिए. सो दिस इज पॉजिटिव जेड एक्सिस. ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 पार्ट्स जो क्रिएट हो रहे हैं. ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. इसी टाइप से सेम एज 4 पार्ट्स यहाँ पे नीचे बिलो भी क्रिएट होंगे. ओके, इस टाइप से देखिए, फिफ्थ, देन सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ. तो इस टाइप से 4 और 4 यहाँ पर 8 ऑक्टेंट्स क्रिएट हो रहे हैं. ओके, सो 3 प्लेन्स क्रिएट्स 8 ऑक्टेंट्स. अब देखिए यहाँ पर साइन की हम बात करते हैं. इस बार ऑक्टेंट में मीन्स फर्स्ट वाले में एक्स पॉजिटिव है
y पॉजिटिव है और z भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर x y z तीनों पॉजिटिव। जब मैं इधर मूव करता हूँ सेकेंड में, तो देखिए मेरी x जो है नेगेटिव डायरेक्शन आ गई, सो x एक्सिस इज नेगेटिव हियर, तो यहाँ पर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है अभी भी, और z पॉजिटिव है। जब मैं थर्ड में मूव करता हूँ, ये देखिए जब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, तो यहाँ पर y और x दोनों ही आपकी नेगेटिव है, लेकिन z पॉजिटिव है, तो माइनस माइनस और प्लस। फोर्थ वाले में बात करता हूँ, तो वापस से x मेरी फिर से पॉजिटिव आ गई, देखिए y नेगेटिव है, तो x प्लस y माइनस और z पॉजिटिव। तो यहाँ पर इस वाले में जब हम फर्स्ट टू फोर्थ मूव करते हैं, तो z वाला जो है ये पॉजिटिव रहेगा तीनों में। लेकिन अब आपको क्या करना है, जब मैं नीचे की तरफ मूव करता हूँ, तो नीचे क्या होगा, चारों सेम रहेंगे, एक्स वाई सेम रहेंगे चारों, जैसे अपने ऊपर थे, ओके। लेकिन यहाँ पर z नेगेटिव आएगा, ओके। देखिए ये जो z है ये अब नेगेटिव हो गया है, तो 4 बार ऊपर पॉजिटिव था z, और यहाँ पर चारों बार नेगेटिव आएगा। बाकी जो साइंस रहेंगे x और y के वो सेम रहेंगे, जैसे अपने 1 to 4 थे, ओके। तो इस टाइप से आपको साइन याद कर सकते हैं। अब इसकी ट्रिक बता दूं मैं आपको फ्रेंड। देखिए इसकी ट्रिक कैसे होगी, यहाँ पर आप टेबल बनाते हैं साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स के, ओके। तो यहाँ पर है मेरे पास ऑक्टेंट्स, ओके, ऑक्टेंट्स हो गए मेरे पास, और यहाँ पर है मेरे पास कोऑर्डिनेट्स, ओके फ्रेंड्स। अब देखिए ऑक्टेंट्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर, ये 4 ऑक्टेंट हो गए, ओके। उसके बाद में फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है, एक्स वाई एंड जेड, ओके फ्रेंड्स। अब देखिए फर्स्ट वाले में मैंने आपको क्या बताया, एक्स जो है आपका पॉजिटिव रहेगा, ओके, वाई पॉजिटिव रहेगा और जेड भी पॉजिटिव रहेगा, ओके। जब मैं मूव करता हूँ सेकंड में, तो मेरा एक्स जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन वाई पॉजिटिव है और जेड भी पॉजिटिव है। थर्ड में मूव करता हूँ, तो एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन एक्स और वाई नेगेटिव बट जेड पॉजिटिव। फोर्थ वाले में मूव करता हूँ, तो फिर से मेरा एक्स तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं एक्स और वाई को ही लेता हूँ, कंसिडर करता हूँ, तो मेरा सेम हो जाएगा जैसे मेरा 2D में था, ओके। लेकिन जब मैं थर्ड कोऑर्डिनेट लेता हूँ जेड, तो यहाँ पर फर्स्ट टू फोर्थ जेड पॉजिटिव है, तो 4 बार प्लस लिखना है आपको, प्लस 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 प्लस। बाकी ये तो आपके जैसे 2D में थे वैसे लिखना है। उसके बाद में 4 बार ये दोनों सेम रहेंगे, लेकिन z नेगेटिव जाएगा, मीन्स देखिए नीचे की तरफ मैं जाता हूँ बिलो, तो फिर फिफ्थ ऑक्टेंट में मैं जाता हूँ, तो ये दोनों फिर से प्लस रहेंगे, तो आपको एज इट इज लिख दिए प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस और प्लस माइनस, और z अब चारों में नेगेटिव रहेगा। तो ये एक ट्रिक है, ओके, दिस इज द ट्रिक, आपको याद करना है। तो प्लस प्लस, ओके, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, और 4 बार z पॉजिटिव। फिर इसको रिपीट कर दीजिए, तो प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, और फिर 4 बार z नेगेटिव। सो दिस इज द साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, ओके, इन 8 ऑक्टेंट्स। तो इस टाइप से आपको क्या करना है फ्रेंड, इस टाइप से आपको जो है ऑक्टेंट्स के साइन याद रखना है, ओके। Now let us see a simple difference between 2D and 3D. अब 2D और 3D में छोटा सा डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। टू डी एंड 3D फ्रेंड्स, हियर D क्या है,
डी स्पेसिफाई डायमेंशन। यहाँ पर डी जो है वो डी स्पेसिफाई करता है डायमेंशंस। तो 2D में 2 डायमेंशन होते हैं, 3D में 3 डायमेंशन। ओके, अब यहाँ पर अपन थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं इनमें। द प्राइमरी डिफरेंस, द primary difference, primary difference between 2D and 3D shapes is that a 2D shape comprised of 2 dimension। ओके, यहाँ पर प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन 2D and 3D shapes is that 2D shape consists or comprises of 2 dimensions, okay, that are length and width। okay, while a 3D shapes comprised of 3 dimensions that are length, width and height। यहाँ पर हाइट भी आती है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि हम जब स्पेस की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट क्या है? सम examples of 2D shapes are square, triangle, rectangle, सर्कल एक्सेट्रा। यहाँ पर स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, ओके, पेंटागन, हेक्सागन, इस टाइप के अपन शेप्स की स्टडी करते हैं। ओके, बट इधर मैं बात करूं, इन 3D वी स्टडी द ऑब्जेक्ट which has 3 dimensions। For example, cube, cuboid, cone, sphere and so on, इस टाइप से। ओके फ्रेंड्स, so this is the type of shapes which we study। okay, one more point is that to locate a point in a plane, to locate a point means to determine the position of a point in a plane। यहाँ पर प्लेन की बात कर रहे हैं अपन, in a plane that is flat surface। okay, 2D की बात कर रहे हैं। two numbers are needed। okay, therefore a
plane is called 2D. ओके, बट इधर बात करें अपन 3D में, टू locate a point in space, three numbers are required. Okay, okay friends, 4 point. Two axes, x axis and y axis, are needed or required in 2D. ओके, फोर्थ में 3 axes, x axis, y axis, 3 axes, x axis, y axis and z axis is required. ओके, सो यहाँ पर जो पोजीशन रहेगी वो किसी भी पॉइंट की x, y, z, ओके, इस टाइप से यहाँ पर अपन डिनोट करते हैं, डिनोटेड. ओके, बट यहाँ की मैं बात करूँ 2D में कोई भी पॉइंट है उसको x, y से अपन डिनोट करते हैं. ओके फ्रेंड्स, पोजीशन ऑफ पॉइंट is denoted by a triplet. Okay, x, y, z, and here only ordered pair जो रहता है उसमें x और y दो ही कोऑर्डिनेट या दो नंबर रहते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 2D 3D. ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस. ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं सो दैट वी कैन क्लियरली अंडरस्टूड हाउ दिस वर्क. Okay friends, so let us see the formula used in 3-dimensional coordinate geometry. The first formula is distance formula. Distance between 2 points. Okay friends, so in 3-dimensional geometry the point is considered as in space. Okay, means suppose we have these 3 axes. This is our z axis, this is our x axis and this is our y axis. Okay, suppose we have 2 points or 2 objects. This is object P or point P and this is object Q. Okay, the coordinates of these 2 points are x1, y1, z1 and coordinate of Q are x2, y2, z2. Okay, and we have to find the distance between these 2 points. Okay, then we use the formula that is PQ, means distance between 2 points is given by x2. This is modulus because distance is always positive, so we take the mod of this distance. So x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus
z1 whole square, and this whole is in under root. Okay, so this is the distance between 2 points in 3D geometry. Okay, if these 2 points on the फ्लैट सरफेस, अगर ये स्पेस में नहीं होंगे पॉइंट, ओके, अगर ये सिंपल फ्लैट सरफेस पे होंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू is considered as in 2D. ओके फ्रेंड्स, अगर ये पॉइंट्स जो होंगे प्लेन सरफेस पे होंगे, फ्लैट सरफेस पे होंगे, दैट इज सिंपल प्लेन पे होंगे, नॉट इन ए स्पेस, तो आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो 2D का फॉर्मूला हो जाएगा. मीन्स यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, द रीजन इज दैट ये जो जेड एक्सिस है, ओके, ये यहाँ पर डिमिनिश हो जाएगी. ओनली वी हैव only two axes x and y, so the formula is reduced as, okay, in 2D की बात कर रहे हैं, pq is equals to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, so this is formula in 2-dimensional geometry between 2 points. Okay, now let us take next formula, that is section formula. The second one is section formula. Okay, what is section formula? Suppose we have, this is our axis as y axis, this is x axis, and this is z axis, and suppose we have given 2 points, okay, P and Q. We join these 2 points. Okay, suppose we have a line joining these 2 points, and a plane or a line intersect this, okay, this line, okay, which joins P and Q at point, say this is point, for example R. Okay, so we have to find coordinates of R. Okay, means we have given a line which joins these 2 points in 3D, and suppose we have a plane, okay, this is plane, okay, this is, suppose we have a plane, okay, and if this plane intersect or cut PQ in ratio M1 and M2, okay, and the coordinates of P are, suppose P के coordinate है हमारे पास x1, y1 and z1. This is the coordinates of point P, and x2, y2 and z2, these are the coordinate of Q. Okay, so हमें क्या निकालना है, we have to find coordinates of R. Okay, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, let the 2 given points be P, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, and Q coordinates are x2, y2, z2. Okay, let R divides, R के पॉइंट्स अपन मान लेते हैं x, y, z. Okay, let R divides PQ in the ratio M1 is to M2. Okay, then the coordinates
coordinates of R is given by, यहाँ पर आपको फॉर्मूला क्या यूज करना देखिए, m1 x2 प्लस माइनस m2 x1 अपॉन m1 प्लस माइनस m2। ओके, सिमिलरली y किसे निकालेंगे अपन, y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस माइनस m2 y1 अपॉन m1 प्लस माइनस m2 एंड z कोऑर्डिनेट m1 z2 प्लस माइनस m2 z1 अपॉन m1 प्लस माइनस m2। अब देखिए मैंने यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लिखा है, नोट दैट, यहाँ पर आपको नोट करना है प्लस इज यूज्ड, ओके, प्लस साइन कब यूज करना है, व्हेन द डिवीजन इज इंटरनल, INTERNAL, इंटरनल। ओके, जब यहाँ पर इंटरनल डिवीजन आपको दिया हो क्वेश्चन में, इंटरनली वो डिवाइड कर रहा है, ओके, इन द गिवन रेशो में, तो आपको प्लस साइन यूज करना है, पॉजिटिव साइन यूज करना है। ओके, और माइनस साइन इज यूज्ड इफ द डिवीजन इज एक्सटर्नल। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर एक्सटर्नली डिवीजन होगा तो माइनस साइन आएगा यहाँ पर, और इंटरनली डिवीजन होगा तो प्लस साइन आएगा। सो दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टेक वन मोर फॉर्मूला। ओके फ्रेंड्स, लेट अस टेक वन मोर फॉर्मूला। फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड, CENTROID, सेंट्रॉइड। Let us, this is our triangle, okay, whose points are P, Q and R, okay, and if we draw the medians, these are the medians, okay friends। so जहाँ पर medians कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, that is called centroid, इसको हम बोलते हैं centroid of the triangle। okay, जी से डिनोट करते हैं इसे हम जी। सो दिस इज 3 पॉइंट्स, x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3, and G is our centroid। so the coordinate of the coordinates of the centroid of the triangle whose vertices are x1 y1 z1, x2 y2 z2 and x3 y3 z3। इस टाइप से ये आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ओके, वर्टिसेस के। अब आपको जी निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, मीन्स सेंट्रॉइड निकालना है। तो वो होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2, y1 प्लस y2 प्लस y3, सॉरी दिस इज 3 अपॉन 3, एंड नेक्स्ट इज, यहाँ लिखता हूँ मैं, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्राइड। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा फॉर्मूला सेक्शन। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, अब हम 3D क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस सी द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 3D।
इसके पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। क्वेश्चन 1 देखिए, इफ अ पॉइंट इज ऑन द x axis, then write its y and z कोऑर्डिनेट्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी 3 एक्सिस रहती हैं, ओके, सो दीज आर 3 एक्सिस। दिस इज z एक्सिस, this is x axis and this is y axis। ओके, दिस इज द नेगेटिव z एक्सिस। यहाँ पर जब हम मूव करेंगे तो माइनस नेगेटिव z रहती है। इधर इसको हम मूव करते हैं तो दिस इज अवर नेगेटिव x एक्सिस, और जिसको हम इधर मूव करते हैं तो दिस इज अवर नेगेटिव y एक्सिस। ओके, तो इस टाइप से 8 ऑक्टेंट्स बनते हैं हमारे पास। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर, कि जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, सो दिस इज अवर, ये हमारी जो है एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे कहीं पर भी कोई भी पॉइंट होगा तो वहाँ पर वाई और जेड जीरो होते हैं। ओके, आया समझ में फ्रेंड्स? तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, इफ अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस देन इट्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे y and z coordinates of any point on the x axis is 0। ओके फ्रेंड्स, तो y और z कोऑर्डिनेट्स जो है वो 0 होंगे। देयरफॉर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p जो है, फॉर एग्जांपल ये जो p है मेरा, यहाँ पर कोई पॉइंट है p, ओके, कहीं पर भी हो सकता है। अगर इधर होगा तो मेरा x जो है पॉजिटिव रहेगा, ओके, और y और z जीरो रहेंगे। लेकिन अगर वो इधर मूव करता है, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, x मेरा नेगेटिव जाएगा, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, प्लस माइनस। ओके, प्लस मीन्स अगर इस डायरेक्शन में है तो x प्लस रहेगा, इधर है तो x नेगेटिव रहेगा, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट y और z दोनों जीरो रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसी टाइप से सेम अगर यही कॉन्सेप्ट हम y और x एक्सिस पे भी अप्लाई करेंगे, मीन्स अगर कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट इज ऑन द y एक्सिस तो x और z जीरो हो जाएंगे, और अगर एनी पॉइंट इज ऑन द z एक्सिस तो x और y जीरो हो जाएंगे। सो दिस इज सेम कॉन्सेप्ट फॉर ऑल द एक्सिस। ओके, सो दिस इज simple concept। okay, let us see one more question। if a point is in the plane xy, okay, then its y कोऑर्डिनेट इज क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो ए कॉन्सेप्ट। अब मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने अपने जो 3 प्लान्स मैंने आपको बनाए थे तो वो कैसे बनते हैं, लाइक दिस। देखिए दिस इज आवर वन प्लान एंड दिस इज आवर सेकेंड प्लान, और जो थर्ड प्लान बनता है दिस इज आवर एक्सिस रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, जो थर्ड प्लान बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिए थर्ड प्लान। ओके, तो ये जो है लाइक ए वॉल ऑफ अ रूम। देखिए ये 2 वॉल्स है, यहाँ पर परपेंडिकुलर एक दूसरे के, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और ओके फ्रेंड्स, और
ये एक थर्ड प्लेन रहेगा, दिस इज आवर थर्ड प्लेन। तो इस टाइप से तीन प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर, ओके। और ये उनके अकॉर्डिंग एक्सिस है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, ओके फ्रेंड्स, दिस इज आवर वाई एक्सिस, और यहाँ मैं ऊपर की तरफ मूव करता हूँ तो दिस इज आवर जेड एक्सिस। अब ये जो प्लेन है, अब मैं आपको यहाँ डायरेक्ट बताता हूँ, ये वाला जो प्लेन है दिस इज एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन पर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट जो रहता है वाई इज ज़ीरो, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। यहाँ पर वाई ज़ीरो रहेगा, जैसे कि एक्सिस के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे जेड और वाई दोनों जीरो थे, ओके। बट दिस इज ए प्लेन, ये जो प्लेन आ रहा है किसके बीच में आ रहा है, एक तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, तो यहाँ पर वाई हमेशा जीरो रहेगा। अब मैं इस प्लेन की बात करता हूँ, ओके। देखिए इस प्लेन में वाई और जेड आ रहा है, तो दिस इज, यहाँ लिख दीजिए अपन, दिस इज अवर वाई जेड प्लेन। तो यहाँ पर एक्स जो है ज़ीरो रहेगा, ओके। सिमिलरली अब मैं इस प्लेन की बात करता हूँ, दिस इज माई, ये क्या मेरा एक्स वाई प्लेन, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, तो यहाँ पर z इज ज़ीरो, यहाँ पर क्या रहेगा, z हमेशा ज़ीरो रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ओके। अगर प्लेन रहेगा तो एक कोऑर्डिनेट ज़ीरो रहेगा, बाकी दो उसमें नॉन ज़ीरो रहेंगे। बट अगर एक्सिस की बात करते हैं तो जिस एक्सिस में उसके अलावा जो अनदर टू कोऑर्डिनेट्स हैं वो ज़ीरो रहेंगे। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके। ये आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, ओके फ्रेंड्स। इसी प्रकार से मैं आपको एक्सिस का बताता हूँ, यहाँ पर ऑन द एक्स एक्सिस, जब मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूँ, ओके, यहाँ पर वाई एंड जेड आर ज़ीरो, ओके। सिमिलरली अगर मैं ऑन द वाई एक्सिस, अगर मैं वाई एक्सिस की बात करता हूँ तो एक्स एंड जेड आर ज़ीरो, ओके। और इसी प्रकार से ऑन द जेड एक्सिस, अगर मैं जेड एक्सिस की बात करूं तो एक्स एंड वाई जो है ज़ीरो रहेंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ओके। दिस द डिफरेंस बिटवीन एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है और प्लेन पे कोई पॉइंट है तो क्या डिफरेंस होगा। सो दिस इज द डिफरेंस। नाउ लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चन, ओके फ्रेंड्स। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, पॉइंट दे रखे हैं आपको P, P के पॉइंट दे रखा है आपको, दिस इज 2, 3, 5 एंड 4, एक और पॉइंट है Q, मान लेते हैं इसको हम Q, 4, 3, 1। ओके फ्रेंड्स, आपको कोई भी दो पॉइंट अगर दे रखे हैं तो आपको उसको लेट कर लीजिए, सपोज कर लीजिए P एंड Q या ABC कुछ भी, तो हमें इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ओके। सो सॉल्यूशन देखिए, वी नो दैट द distance between, we know that the distance between two point P x1 comma y1 comma z1 and Q x2 comma y2 comma z2 is given by, ओके। हमारे पास, हम जानते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है 3D में, इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। तो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। देयरफॉर यहाँ पर हमारे पास हियर x1 is 2, okay, y1 is 3 and z1 is 5, x2 is 4, y2 is 3 and z2 is 1, ओके। सो यहाँ पर आप पी क्यू हमें निकालना है डिस्टेंस, तो कैसे निकालेंगे देखिए,
x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना जाएगा, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, फिर 3 माइनस 3 दैट इज 0 हो जाएगा, लिख दीजिए इसे, प्लस 1 माइनस 5 दैट इज Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर पी क्यू आपको मिल जाएगा 4 माइनस 2 2 होल स्क्वायर इज 4, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4 होल स्क्वायर इज 16, ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू 20, ओके फ्रेंड्स। और 20 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 2 4 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं। यहाँ पेयरिंग कर लीजिए, ये आपको एक पेयर मिल गई तो आपको रूट के अंदर से 2 बाहर आएगा, 1 बचेगा 5। सो दिस इज यूनिट, ओके। इतने यूनिट जो आपको आंसर मिलेगा, 2/5 इज योर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट, ओके फ्रेंड्स। नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपको क्या देखा है, शो दैट पॉइंट्स है आपके पास -2 3 5, एक पॉइंट ये है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको। सेकेंड 1 2 3 सेकेंड पॉइंट दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट, एंड 7, 0 -1 आर कोलिनियर। आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, उसको शो करना है कि क्या ये कोलिनियर है। कोलिनियर मीन्स जो एक ही लाइन पे आते हैं, ओके। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, कोलिनियर मीन्स क्या होता है, इस टाइप से अगर आपने लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पर 1 2 3, सपोज इनका हम पी क्यू और आर नाम दे देते हैं, तो इस टाइप से जितने भी पॉइंट एक लाइन पे आते हैं, ओके, लाई ऑन ए सिंगल लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, ओके। सो लेट points be denoted by P, Q and R, ओके। हमने सपोज कर लिया कि जो गिवन पॉइंट्स है, लेट द पॉइंट्स बी डिनोटेड बाय P, Q and R, ओके, रिस्पेक्टिवली, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं पॉइंट्स लिख लेते हैं, ओके। लेट द पॉइंट्स बी P, Q and R रिस्पेक्टिवली, ओके। अब वी नो दैट पॉइंट्स P, Q and R are collinear if they lie on a line, अगर वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, आते हैं, तो दिस इज आर, ओके। तो अब हमें क्या निकालना है, अगर देखिए एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। तो ये दो डिस्टेंस निकालते हैं और ये निकालते हैं और ये निकालते हैं, और देखते हैं कि क्या वो सेम आ रहा है, इन दोनों डिस्टेंसेस का सम क्या इसके पी आर के इक्वल आ रहा है क्या, तो हम देखते हैं, ओके। अब हम निकालते हैं नाउ पी क्यू, अब हम निकालते हैं पी क्यू, ओके। तो देखिए पी क्यू कितना आएगा, यहाँ पर पी मेरे पास क्या है, दिस इज पॉइंट ऑफ, यहाँ लिख लेते हैं पी के पॉइंट क्या है, -2 3 और 5, ओके। क्यू के लिख लेते हैं अपन 1, 2, 3, ये कोऑर्डिनेट्स है, और आर के हैं 7, 0, -1। अब हम निकालते हैं पी क्यू, ओके। तो पी क्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, देखिए 1 -2 दैट इज 1 -2 होल स्क्वायर, फिर 2 -3 होल स्क्वायर, फिर 3 -5 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा 3, ओके। 1 -2 कितना होता है, 1 + 2, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इधर यहाँ कितना बन जाएगा, -1 का स्क्वायर 1,
और इधर बचेगा -2 का स्क्वायर 4। यहाँ आपके पास आएगा 14। ओके, सिमिलरली अब निकालते हैं क्यू आर निकालते हैं। तो 7 - 1 होल स्क्वायर, 0 - 2 होल स्क्वायर और -1 - 3 होल स्क्वायर कितना आएगा? 7 - 1 6 होल स्क्वायर 36। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में 0 - 2 होल स्क्वायर दैट इज 4 प्लस -4 स्क्वायर दैट इज 16। ओके, तो ये कितना आएगा आपके पास? इसको निकाल लीजिए। कितना है हमारे पास? ये आएगा हमारे पास 56। ओके, अब निकालते हैं अपन पी आर निकालते हैं। तो पी आर निकाल लीजिए। 7 -2 होल स्क्वायर प्लस 0 -3 होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 होल स्क्वायर। अब इसको फाइंड आउट कर लीजिए कितना आ रहा है यहाँ पर। 7 -2 कितना हो जाएगा? 7 + 2 दैट इज 9 होल स्क्वायर। 9 का कितना होता है? 81 होता है। यहाँ पर 3 का -3 का होल स्क्वायर दैट इज 9। यहाँ पर कितना हो जाएगा? -6 होल स्क्वायर दैट इज 36। ओके, अब यहाँ पर कितना आएगा? कितना हो गया? 81 + 9 90 और 36 कितना आएगा? 126। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया 126। अब देखिए फ्रेंड्स, 126 को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? इसको अगर मैं सेपरेट कर लेता हूँ 126 को, तो मैं क्या लिखता हूँ इसको? 3 ओके इंटू 41 आ जाएगा फ्रेंड्स। इस टाइप से लिख सकते हैं मैं इसको। और 40 इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? ये हो गया फ्रेंड्स। ओके, और क्या लिख सकते हैं इसको अपन सेपरेट करके? ओके फ्रेंड्स, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। ओके, तो ये आएगा इतना। ओके, अब इसको और ब्रेक करता हूँ तो कितना आएगा? ये 3 ओके 14 इंटू 3। अब यहाँ पर 3 मेरा पेयर में आ रहा है तो 3 भरा जाएगा और अंदर बचेगा 14। ओके, सिमिलरली यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर? 2√14। ओके, क्योंकि जब मैं 2 अंदर ले जाऊँगा इसको रूट को तो कितना आएगा? 4। तो 14 इंटू 4 कितना आएगा? 56। अब ये मेरे पास तीनों पॉइंट आ गए। ओके, अब मुझे क्या चेक करना है? चेक करना है और वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी क्यू प्लस, मुझे चेक करना है पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर। ये मुझे चेक करना है तो मैं चेक करता हूँ। देखिए ये चेक करना है मुझे। अब पी क्यू क्या है मेरे पास? √14। उसके बाद में क्यू आर कितना है? 2√14। ओके, और ये कितना हो जाएगा? 3√14 एंड दैट इज इक्वल्स टू पी आर। ये देखिए आ गया। हैंस, और यहाँ के लिखेंगे अपन ये दोनों डिस्टेंसेस ओके थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ गए। इसका मतलब एक ही लाइन में हैंस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर है, मीन्स कोलाइनर, मीन्स एक ही लाइन पे आ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स,
Now let us take one more question. Now let us take one more question. Verify that the points, कौन कौन से पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, पॉइंट्स दे रखे हैं आपको फ्रेंड्स 0, 7, -10, 1, 6, -6 एंड एक और दे रखा है आपको 4, 9, -6 आर द vertices of an isosceles ट्रायंगल। आपको ये वेरीफाई करना है, मीन्स चेक करना है कि क्या ये जो वर्टाइसेस है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करते हैं क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं क्या ये। ओके, तो सॉल्यूशन देखिए, लेट द पॉइंट्स 0, 7, -10, 1, 6, -6 and 4, 9, -6 be denoted by A, B, C respectively. ओके, नाउ अब हमें फाइंड करना है। ओके, तो हमारे पास क्या है, ए है मेरे पास 0, 7। ओके, इसको मैं एज ए ट्रायंगल के फॉर्म में बना लेता हूँ, ये हो गया ए। बी है मेरे पास 1, 6, -6 और सी है मेरे पास 4, 9, -6। ये हो गया। सो अब मैं निकालता हूँ ए बी। ओके, ए बी निकाल लीजिए, तो ए बी कितना आएगा, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ओके, ए बी निकालना है तो 1 - 0 होल स्क्वायर दैट इज़ 1, 6 - 7 होल स्क्वायर दैट इज़ -1 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, -6 -10 दैट इज़ +4 होल स्क्वायर इज़ 16। यहाँ पर आएगा मेरे पास 18। कितना आएगा फ्रेंड्स, ये आएगा मेरे पास 18। तो इसको मैं लिखता हूँ 18 को 9 × 2 और इसको मैं 3 यहाँ भरा जाएगा तो 3/2। सो मेरे पास एक तो डिस्टेंस ही आ गया। नाउ बी सी निकालता हूँ मैं, फाइंड आउट बी सी। 4 - 1 दैट इज 3 होल स्क्वायर इज 9, 9 - 6 दैट इज 3 होल स्क्वायर इज 9। ओके फ्रेंड्स, और -6 -6 that is -6 plus 6 is 0. Okay, so here we get 9 × 9 18. Okay, that is, यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 9 × 2 और यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, ये हो गया इतना। ओके, अब मैं निकालता हूँ ए भी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, मैं निकालता हूँ ए सी फाइंड आउट करता हूँ। ओके, ए सी, तो 4 - 0 होल स्क्वायर इज 16, 9 - 7 2 + 2 होल स्क्वायर इज 4, -6 -10 that is +4 होल स्क्वायर इज 16। हियर वी गेट 36। ओके, दैट इज 36 आया मेरे पास यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, तो 36 इज अंडर निकाल लिए 6 आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हियर देखिए ए बी मेरा किसके इक्वल आया, बी सी के। देखिए ये जो ए बी है और ये जो बी सी है, ये दोनों इक्वल आया, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी। यहाँ पर दो साइड्स इक्वल आई है। ओके, बट दिस इज नॉट इक्वल टू ए सी। यहाँ पर ए सी के इक्वल नहीं, अगर तीनों साइड इक्वल होती तो ये मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता, बट यहाँ पे दो ही साइड इक्वल है। ओके, थर्ड इक्वल नहीं है इन दोनों के। ओके, हैंस thus the given
points are the vertices of an isosceles triangle। तो ये मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। ओके, सो दिस इज और प्रूफ, ये मेरे पास प्रूफ हो गया। हैंस प्रूफ। ओके, नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए फ्रेंड्स, फाइंड द इक्वेशन of the set of points, find the equation of set of points which are equidistant from the points 1, 2, 3 and 3, 2, -1। ओके फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है कि अगर कोई पॉइंट है वो इससे और इससे दोनों से सेम डिस्टेंस पे हो। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, सपोज कर लेते हैं अपन, लेट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बी द पॉइंट that is equidistant from points, इसको अपन ए मान लेते हैं, 1, 2, 3 एंड सेकेंड को भी मान लेते हैं 3, 2, -1। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट है P जो कि A से और B से, दिस इज A और दिस इज B, इन दोनों से सेम डिस्टेंस पे, मीन्स दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। तो फॉर्मूला लगा लीजिए आप, क्या मिलेगा हमें, पी ए निकाल लीजिए। पी ए क्या हो जाएगा, x -1 होल स्क्वायर y -2 होल स्क्वायर z -3 होल स्क्वायर एंड दिस इज डिस्टेंस, तो यह अंडर रूट आएगा। सिमिलरली अब निकाल लीजिए आप पी बी, तो पी बी कितना जाएगा फ्रेंड्स, x -3 होल स्क्वायर y -2 होल स्क्वायर एंड प्लस z माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 होल स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो अंडर रूट। ओके फ्रेंड्स, पी ए निकालें या ए पी बी निकालें या फिर पी बी एक ही बात होता है। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। अब स्क्वायरिंग कर लीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे अपन, तो क्या जाएगा x -1 होल स्क्वायर y -2 होल स्क्वायर z -3 होल स्क्वायर। इधर क्या है मेरे पास, x -3 होल स्क्वायर y -2 होल स्क्वायर और z +1 होल स्क्वायर। अब इसको अपन ऊपर कर लेते हैं फॉर्मूले से, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स +1। सिमिलरली y स्क्वायर -2y, सॉरी ये हो जाएगा 4 क्योंकि 2ab होता है ना, तो जाएगा 4, यहाँ पर 2 है और +4, इधर हो जाएगा प्लस z स्क्वायर
माइनस 6z और प्लस 9। इधर क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, फिर वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1। ओके फ्रेंड्स, अब जो टर्म दोनों साइड सेम है वो कैंसिल हो जाएगी, मीन्स ज़ीरो हो जाएगी। ओके, तो देखिए क्या बचता है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि मैं सारी टर्म को एक ही साइड लेके आ रहा हूँ। ओके, ये जो टर्म्स है इसको भी इधर ले आता हूँ, तो जब ये इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो दिस इज कैंसिल हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद में वाई स्क्वायर वाले टर्म में देखूँ तो ये जब वाई स्क्वायर इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। मैं यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ, पर आपको कैंसिल नहीं करना है, आपको इस टर्म को इधर लेके आना है, साइन नेगेटिव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और फिर ज़ीरो हो जाएगा। ओके, सिमिलरली वाई स्क्वायर को जब इधर लेके आएंगे इस वाले को LHS में, तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये इधर प्लस है तो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इस 9 को अब इधर लाएंगे LHS में, तो माइनस 9 हो जाएगा, तो ये प्लस 9 है तो जीरो हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और क्या टर्म है, ये 4 वाला टर्म है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में बचा 1, ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, x वाला टर्म माइनस 2x है यहाँ पर, और इधर से मेरे पास ये आ रहा है x वाला टर्म कौन सा, ये रहा, इसको इधर लाऊंगा तो जाएगा प्लस 6x। आगे देखते हैं क्या बचा है, 4 वाला टर्म माइनस 4y यहाँ पर है। अब देखिए ये माइनस 4y और इसको जब मैं इधर लेके आता हूँ तो प्लस 4y हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा, आप इधर बचा माइनस 6z। ओके, इधर 6z बचा, और इधर से z वाली टर्म कौन सी है, ये रही, तो माइनस 2z। ये प्लस वाला माइनस है, जब भी इक्वल के अपन ट्रांसफ़र करते हैं इक्वलिटी के साइन के LHS या RHS में, तो वो साइन चेंज हो जाता है, और इधर बचा अब ज़ीरो। अब ये हो जाएगा 4x। ओके, माइनस 2x प्लस 6 4x, और इधर हो जाएगा 6 माइनस माइनस है दोनों तो ऐड हो जाएंगे, तो 6 और 2 कितना जाएगा यहाँ पर 8, तो माइनस 8z इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, तो 2x बचेगा, ये सॉरी 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर टोटली, तो 4 कॉमन लिए तो x बचेगा, माइनस 2z बचेगा इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2z इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर अपॉन में चले जाएगा 4 0 के, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पर। ओके, तो इतना हो जाएगा। अब इतना हो गया हमारे पास, तो विच इज thus the required equation is x माइनस 2z इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आंसर आ गया, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन इफ PA plus PB is equal to 10, where A is 4, 0, 0, B is minus 4, 0, 0, and P is x, y, z। ओके फ्रेंड, देखिए आपको क्या दे रखा है, ये एक पॉइंट है x, y, z, इसके कोऑर्डिनेट है, और इसका जो सम है, ओके, मीन्स जो ए से डिस्टेंस है दैट इज PA प्लस PB। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये है A, यहाँ से ये एक पॉइंट क्या हमारा 4, 0, 0, तो PA ओके, और PB एक और पॉइंट दे रखा है B,
दैट इज़ -400। PA प्लस PV, ये जो दोनों डिस्टेंसेस है वो आपको 10 यूनिट दे रखा है। तो आपको इक्वेशन निकालना, जैसे भी अपन ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में निकाली थी। ओके, तो देखिए वी हैव गिवन द इक्वेशन we have given the equation PA plus PB is equal to 10। देयरफॉर अब यहाँ पे पुट कर दीजिए PA, डिस्टेंस निकाल लीजिए PA, ये हो जाएगा PA या APA की बात है तो मैं निकालता हूँ x -4 होल स्क्वायर y -0 होल स्क्वायर z -0 होल स्क्वायर एंड अंडर रूट। ओके, प्लस करना है, PB निकाल लीजिए आप, तो x +4 होल स्क्वायर y -0 होल स्क्वायर z -0 होल स्क्वायर, दिस इज PA एंड दिस इज PB, और यहाँ पर आपको 10 दे रखा है, दिस इज इक्वल्स टू 10 यूनिट। ओके फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो एक कोई भी टर्म को अपन उधर लेकर जाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, तो मैं इसको इधर रखता हूँ। ओके, x -4 y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट, ये अंडर रूट में। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये वाली टर्म मेरी अंडर रूट में है। ओके, x -4 होल स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब मैं इस वाली टर्म को उधर लेके आता हूँ, तो उधर है मेरे पास 10 और ये जाएगा माइनस में, उधर जाएगा तो x +4 होल स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एंड दिस इज अंडर रूट। अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, इसको ओपन कर लेता हूँ फॉर्मूले से, उसके पहले स्क्वायरिंग करता हूँ। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों से स्क्वायरिंग करते हैं, होल स्क्वायर मीन्स, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो बाहर आ जाएगा। इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, और इधर स्क्वायर करूँगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आएगा। तो a स्क्वायर दैट इज 100। ओके, a स्क्वायर -2ab, तो a ये और b ये है 20, और होल अंडर रूट x +4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ओके, और फिर b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर मतलब ये पूरा बाहर आ जाएगा, तो x +4 होल स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब इसको ओपन करते हैं अपन, तो इधर हो जाएगा, और इस वाली टर्म को पूरी को मैं क्या करता हूँ, इस वाली टर्म को पूरी को इधर लेके आता हूँ मैं। ओके, अब यहाँ पर कितना बचेगा मेरे पास, इसको ओपन करता हूँ, a स्क्वायर -2ab, तो 8x b स्क्वायर प्लस 16 प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इस वाली टर्म को मैं इधर ले आता हूँ। ओके, तो ये पूरा माइनस में हो जाएगा, फिर से इसको ओपन करता हूँ, तो a स्क्वायर ओके प्लस, सॉरी ये पूरा ऐसे एक काम करते हैं, इसको पहले हम होल ब्रैकेट लेते हैं, इसको पूरा ले आते हैं और इसको ओपन करते हैं, x स्क्वायर फिर 8x 16 y स्क्वायर z स्क्वायर। ओके, और इस 100 को भी इधर ले आता हूँ मैं, तो ये माइनस क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ओके, और इधर जो बचेगा इज इक्वल टू के, इधर बचेगा मेरे पास -20 है, और x +4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इतनी टर्म मेरे पास बचेगी LHS में। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, इस माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो क्या बचेगा x स्क्वायर -8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर, माइनस अंदर ले लीजिए, -x स्क्वायर
माइनस 8x माइनस 16 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ओके, और माइनस 100 इधर है माइनस 20 एक्स प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके। अब देखिए यहाँ पर टर्म्स कौन सी कैंसिल हो रही है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 0 हो रहा है, 8x सॉरी कैंसिल नहीं हो रहा, दिस इज़ नॉट कैंसिल, ये राइट है। तो यहाँ पर 8x माइनस और माइनस 8x, तो माइनस 16x, ये कैंसिल नहीं है, सॉरी, एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ है, ओके। 16 जरूर कैंसिल हुआ है, ये कैंसिल नहीं हुआ है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना, दिस इज़ नॉट कैंसिल, ये सही है, दिस इज़ राइट है, क्योंकि मैंने इसको ऐड कर दिया यहाँ पर, माइनस 8x माइनस 8x 16x ले लिया, फिर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, जेड स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ मुझे क्या मिला, ये वाली टर्म मिली, और एक है माइनस 100, ओके। इधर मिली मुझे माइनस 20 और एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ओके। अब क्या करता हूँ मैं, देखिए, अब मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करता हूँ, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, ओके। तो ये हो जाएगा 16x प्लस 100, यहाँ से -4 मैंने कॉमन ले लिया, -4, यहाँ पे अगर -4 कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा मेरे पास 4x, ओके, समझ में आया फ्रेंड्स। यहाँ से मैंने -4 कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा 4x, क्या बचेगा 4x, और यहाँ बचेगा 25, ये है 25, इधर है -20 और x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये -4 और ये कैंसिल हो जाएगा ये 5 से, तो 4x प्लस 25, इधर बचेगा सिर्फ 5, ओके, 4 5 ये 20 से कैंसिल हो गया, माइनस साइन भी कैंसिल हो गया, इधर बचा आपके पास x प्लस 4 होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, फिर से स्क्वायरिंग करना है। क्यों करना है फ्रेंड डबल से स्क्वायरिंग, क्योंकि इसको अंडर रूट के बाहर लेके आना है। तो इधर रहेगा a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिए, 16x स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर 625 प्लस ये हो जाएगा 200x, ओके। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा यहाँ पर, है ना, स्क्वायरिंग किया अपन ने, ध्यान रखना, इसको स्क्वायर करना है तो a प्लस बी के फॉर्मूले से ओपन हो जाएगा, और इधर बचेगा इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8x एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स क्या बचेगा यहाँ पर, 16x स्क्वायर प्लस 625 प्लस 200x, इधर अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 25x स्क्वायर, इधर 200x, इधर कितना मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 का 25 से, तो आपको मिलेगा 400, ओके फ्रेंड्स। इसके बाद में 25y स्क्वायर और प्लस इधर क्या मिलेगा, 25y स्क्वायर हो गया प्लस 25z स्क्वायर, ओके फ्रेंड्स। अब देखिए, अब हमारे पास क्या बचा है, अब मैं ये सारी टर्म्स को इधर ट्रांसफ़र करता हूँ, ओके, इस टर्म को इधर ट्रांसफ़र करता हूँ, तो 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर कितना बचेगा, 9x स्क्वायर, ओके फ्रेंड्स। ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, सेम टर्म है इसलिए 0 हो जाएगी। इसके बाद में प्लस 25 फाई स्क्वायर है
प्लस 25 जेड स्क्वायर है, ओके। और ये वाली टर्म उधर जाएगी तो कितनी बचेगी फ्रेंड्स, ये वाली माइनस में हो जाएगी। इसको इधर ले जाऊंगा तो मैं कितना बचेगा 225, ओके, क्योंकि 400 इधर और इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 625 में से 400 माइनस होगा तो कितना बचेगा -225, क्योंकि इसका साइन माइनस है। तो बड़ी टर्म का टाइम, बड़ी वाली टर्म का जो नंबर रहता है उसका साइन होता है, तो ये बड़ी टर्म। तो ये 400 इसमें माइनस करेंगे तो बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 0, क्योंकि ये सारी टर्म्स उधर ले गए। अब ये 0 हो गया, ये आपकी इक्वेशन आ गई, ओके। विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, दिस इज आवर आंसर, ओके फ्रेंड्स। नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। Okay friends, now let us take one more question. Find the coordinate of a point on the y-axis which are at a distance of 5 under root 2 units from point P 3 -2 and 5. ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझ में आया। वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है, ओके, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है जो कि इस पॉइंट से इतने यूनिट के डिस्टेंस पर है। इसका मतलब क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है P जो आपको गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट है 3 -2 और 5। अब ये जो है ये हमारी वाई एक्सिस समझ लीजिए, दिस इज अवर वाई एक्सिस। यहाँ पर कोई पॉइंट है A, ओके, और ये जो डिस्टेंस है ये है 5/√2, और इस पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स वी नो दैट कि जो वाई एक्सिस है उस पर जो कोऑर्डिनेट रहते हैं वो x0 रहता है, ओके, और इसको अपन y मान लेते हैं, और z भी 0 रहता है, ये तो हमें पता ही है। तो देखिए अब सॉल्यूशन क्या लिखेंगे अपन, सॉल्यूशन में हमें लिखना है वी नो दैट, हम जानते हैं x एंड z coordinates of a point on the y-axis are 0. Okay, so let a 0 y 0 be a point on the y-axis, okay। therefore अब हमें निकालना है, therefore PA इज इक्वल्स टू, PA निकाल लीजिए, कितना आएगा ये PA 3 - 0 होल स्क्वायर -2 - y होल स्क्वायर एंड 5 - 0 होल स्क्वायर, ओके। अब ये हमें गिवन है, दिस इज गिवन दैट 5/√2, ओके, ये आपको गिवन है, ओके। देयरफॉर स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, इसका स्क्वायरिंग करके इसको बाहर निकाल लीजिए, तो 3 - 0 होल स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पर a स्क्वायर, ओके, प्लस दैट इज 2 स्क्वायर y स्क्वायर एंड 2ab, तो कितना जाएगा ये 4y प्लस इधर हो जाएगा 25, इधर हो जाएगा 2 बाहर आएगा और 5 का स्क्वायर 25 × 2 50, ओके। यहाँ से अब ये y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 4y, ओके, और अब इधर क्या बचेगा मेरे पास, ये 50 इधर आएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, यहाँ बचेगा, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास बचेगा यहाँ पर, दिस इज योर, यहाँ बचेगा 12, ओके, क्योंकि 25 यहाँ से माइनस हो जाएगा, ओके, और 9 + 4 13 भी माइनस हो जाएगा 25 में से, तो कितना बचेगा 25 माइनस ये -25 प्लस, ओके, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0, ओके फ्रेंड्स, आ गया समझ में। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे y की वैल्यू निकालना है।
तो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 है, ओके। तो मुझे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 इंटू -12 तो -12 मिलना चाहिए, और यहाँ पर 4 है तो प्लस माइनस करूँ तो 4 मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक 6 और एक -2, जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना मिलेगा -12, और ऐड करूँगा तो +4। तो लिख दीजिए y² + 6y - 2y - 12 = 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो y की क्या वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ से y कॉमन आ जाएगा तो बचेगा y + 6, यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा तो y + 6 = 0। तो y + 6 कॉमन आ गया और y - 2 = 0। यहाँ से मेरे पास y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दिस इक्वल्स टू y = -6, और इससे आएगी y = 2, ओके। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे मेरे पास, ये होंगे मेरे पास। एक तो मैं इधर लिखता हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ मिलेगा एक तो मुझे मिलेगा -6 लूँगा एक बार, और एक बार 2 लूँगा। तो यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ मैं इधर, तो मुझे मिलेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आर, एक मिलेगा 0, 6, ओके। वाई की वैल्यू रखना है उसे, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, और 0 एक तो ही मिलेगा, और एक मिलेगा 0, -2 और 0। सो दीज आर द 2 कोऑर्डिनेट्स। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको तो समझ में आएगा क्लियरली। तो जो ए के पॉइंट मिले मेरे पास वो क्या क्या मिले, देखिए 0, फिर एक बार 6 और 0, और दूसरा मिलेगा 0 और -2 और 0। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दिए, दो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, ओके, दो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। वेरीफाई और चेक द पॉइंट्स 0, 7, -10, 1, 6, -6 and 4, 9, -6 आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, ओके, तो जो वर्टाइसेस होते हैं A, B, C, तो अगर कोई भी दो साइड्स ये या फिर ये कोई भी दो साइड अगर इक्वल आती है तो गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके। तो सपोज कर लेते हैं अपन, पॉइंट्स लेते हैं अपन, दिस इज ए ले लेते हैं अपन 0, 7, -10, ओके। बी के ले लेते हैं 1, 6, -6 एंड 4, 9 और -6, ओके। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए इज 0, 7, -10, कॉमा बी इज 1, 6, -6 एंड सी इज 4, 9, -6, बी द VERTIS वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC। हमने सपोज कर लिया कि ये ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। अब हम निकालते हैं डिस्टेंसेस। नाउ AB निकाल लीजिए, AB कितना आएगा 1 - 0 होल स्क्वायर दैट इज 1, ओके, प्लस 6 - 7, ओके, 6 - 7 दैट इज -1 होल स्क्वायर दैट इज 1। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको एक स्टेप भी लिख सकते हैं इसके पहले, और -6 -10 दैट इज +10 हो जाएगा, तो +4 होल स्क्वायर दैट इज 16। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आएगा √18, ओके फ्रेंड्स। अब निकालते हैं अपन BC। देखिए BC कितना आएगा 4 - 1 दैट इज 3 होल स्क्वायर 9, 9 - 6 दैट इज 3 होल स्क्वायर 9, और -6 -6 तो -6 + 6 हो जाएगा तो 0, तो हमें मिल जाएगा 18। अब निकालते हैं अपन AC निकाल लीजिए। तो AC कितना आएगा 4 - 0 होल स्क्वायर दैट इज 16, 4 - 0, ओके, तो 16 होल स्क्वायर करेंगे उसका, 9 - 7 दैट इज 2 होल स्क्वायर इज 4,
और -6 माइनस 10 दैट इज +10, तो +4 होल स्क्वायर दैट इज 16। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 16 और 16 32 + 4 36। ओके, ये हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखें अपन, तो सिंस यहाँ पर देखिए ये जो ए बी आया है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ओके, ए बी और बी सी इक्वल है, देयर फोर ओके ये दोनों इक्वल है, बट ए बी इक्वल टू बी सी है, बट ए बी इक्वल टू बी सी बट नॉट इक्वल टू ए सी। अगर तीनों साइड इक्वल हो जाती है फ्रेंड्स, देखिए अगर तीनों साइड इक्वल हो जाती है तो ये इक्वल ट्रेंगल हो जाता है, बट यहाँ पर सिर्फ दो ही साइड इक्वल है। ओके, सिंस ए बी इक्वल टू बी सी, देयर फोर द गिवन ट्रेंगल is an isosceles triangle, is an isosceles ट्रेंगल। तो गिवन ट्रेंगल आइसोसेलेस ट्रेंगल है। ओके, तो यहाँ पे लिखना है आपको ए बी इक्वल टू बी सी, बट ए बी इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, और ये लाइन यहाँ लिखना है देयर फोर द गिवन ट्रेंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप से आपको डिस्टेंस निकालना है, और कोई भी आपको फिगर दे रखा हो सकता है, रोम्बस हो, स्क्वायर हो, ट्रेंगल हो, बताना है कि वो है या नहीं। तो इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर that divides the line segment joining the point -2, 3, 5 and 1, -4, 6 in the ratio 2:3, फर्स्ट इंटरनली एंड सेकंड एक्सटर्नली। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या निकालना है, आर के कोऑर्डिनेट निकालना है, जो कि इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको 2:3 में डिवाइड करता है। एक बार आपको एक्सटर्नल निकालना है, एक बार इंटरनली फर्स्ट और सेकंड एक्सटर्नली। तो देखिए सबसे पहले अपन इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट of a point which divide the line joining two points in the ratio m:n, ओके, इज गिवन बाय, यहाँ पर इस टाइप से इसके कोऑर्डिनेट निकालते अपन, m इंटू x2 प्लस माइनस n इंटू x1 अपॉन m प्लस माइनस n, m इंटू y2 प्लस माइनस n इंटू y1, m इंटू z2 प्लस माइनस n इंटू z1 अपॉन m प्लस माइनस n। अब मैंने यहाँ पर दो बार साइन लिखे हैं, क्यों, वेयर प्लस साइन गिव्स द इंटरनल डिवीजन, माइनस साइन गिव्स द एक्सटर्नल डिवीजन। ओके, यहाँ पर आपको अगर इंटरनल डिवीजन बोला है तो आपको प्लस साइन यूज़ करना है, और एक्सटर्नल बोला है तो माइनस साइन। अब हम पहले निकालते हैं, फर्स्ट इंटरनल डिवीजन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट। तो हियर पहले पॉइंट लिख लेते हैं, हियर x1 -2, ओके, y1 3 एंड z1 इज 5, x2 इज 1, y2 ओके, x1 y1 z1 हो गया, -2 3 5, x2 1 y2 -4 और z2 इज 6, ये हो गया। और रेशो भी है m और n, कितना है 2:3। ओके फ्रेंड्स, अब आपको सॉल्व करना है, तो लेट अस सी, सॉल्व करते हैं अपन इसको। तो पहला निकालते हैं अपन, फर्स्ट इज इंटरनल डिवीजन। ओके, देखिए इंटरनल डिवीजन कैसे निकालेंगे अपन फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर एक्स वाई जेड, ओके, इन इंटरनल डिवीजन इज गिवन बाय, देखिए सबसे पहले इंटरनल डिवीजन निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू, एक्स का निकाल लीजिए सबसे पहले आप, कैसे निकालेंगे अपन, देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, m दैट इज 2, ओके, x1 इज m प्लस m इंटू x2 दैट इज 1 प्लस n दैट इज 3 इंटू x1 -2 अपॉन m प्लस n दैट इज 2 + 3।
ओके। सिमिलरली जेड का निकाल लीजिए। जेड हो जाएगा आपके पास एम इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन अपॉन टू प्लस थ्री। ओके, दिस इज थ्री। और जेड के लिए निकाल लीजिए एम इंटू जेड टू सिक्स प्लस एन इंटू जेड वन फाइव अपॉन टू प्लस थ्री, दैट इज एम प्लस एन। इसके बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? सो वी गेट एक्स इज कितना मिल जाएगा यहाँ पर? दिस इज वन, टू इंटू वन, ओके दैट इज टू, और माइनस सिक्स, तो यहाँ मिलेगा आपको फोर, माइनस फोर, क्योंकि यहाँ पर माइनस सिक्स है तो माइनस फोर बाय फाइव। सिमिलरली जेड आपको मिल जाएगा, यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। जेड सॉरी वाई मिलेगा, दिस इज वाई, वाई मिलेगा आपको यहाँ पर वन अपॉन फाइव, और जेड आपको मिल जाएगा यहाँ पर 27/5. So this is the coordinates of R which divide internally. Okay, अब अपन निकालते हैं सेकेंड वाला. Okay, coordinates of R x, y, z. Okay, when it divides the given points in एक्सटर्नली. अब एक्सटर्नल डिवीजन निकालना है अपने को, तो x कितना मिलेगा देखिए, सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पर आपको माइनस लगाना है. तो टू इंटू वन माइनस टू इंटू माइनस टू, टू माइनस थ्री. वाई के लिए क्या मिलेगा आपको? टू इंटू माइनस फोर माइनस थ्री इंटू थ्री अपॉन टू माइनस थ्री, और z मिलेगा टू इंटू सिक्स माइनस थ्री इंटू फाइव अपॉन टू माइनस थ्री. ओके, अब निकाल लीजिए x, यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको? टू प्लस सिक्स, ओके दैट इज एट. तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर टू, और ये है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ओके, एक मिनट, सॉरी यहाँ पर क्या है अपना m कितना है यहाँ पर? ये थ्री है, सॉरी दिस इज थ्री. ओके, तो टू, और यहाँ पर थ्री इंटू टू सिक्स. ओके, माइनस सिक्स, माइनस सिक्स. तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर फ्रेंड्स? यहाँ मिलेगा अपने को, ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास एट प्लस सिक्स प्लस टू, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा. ये नीचे है माइनस वन. वाई कितना मिलेगा आपको यहाँ से? यहाँ मिलेगा आपको वाई, देखिए यहाँ पर माइनस एट, और यहाँ पर माइनस, दिस इज थ्री है तो नाइन, तो कितना आएगा? माइनस सेवनटीन. तो माइनस सेवनटीन, और नीचे सब में माइनस वन मिल रहा है. ओके, और जेड कितना मिलेगा? दिस इज रफ वर्क है, यहाँ पर ROUGH रफ है, और जेड मिलेगा यहाँ से आपको 12, 12, और यहाँ पर मिलेगा माइनस 15. ओके, तो ये कितना आएगा यहाँ पर? ये आएगा आपका माइनस थ्री. तो माइनस थ्री अपॉन माइनस वन. सो कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे यहाँ पर? एक्स हो जाएगा यहाँ पर माइनस एट, वाई हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जेड हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री. सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स. ओके, व्हेन द डिवीजन इज एक्सटर्नली. ओके फ्रेंड्स, तो कोऑर्डिनेट इज माइनस एट, माइनस 15 एंड थ्री. ओके, और ये हो गया एक्सटर्नल, एक्सटर्नली डिवीजन. ओके, और यहाँ पर जो हमारे कोऑर्डिनेट आए थे वो आए थे, कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आए थे माइनस 4/5, 1/5, 27/5. यहाँ पर था
इंटरनली डिवीजन, ये इंटरनल डिवीजन के कोऑर्डिनेट थे। ओके फ्रेंड्स, सो दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ आर। अब अपन ने दोनों केसेस देख लिए, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशो इन विच एक्स जेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए is -1, -3, 4 and B 4, 2, -1। ओके, तो सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या बोला है कि एक्स जेड प्लेन जो है वो इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करती है वो किस रेशो में डिवाइड करता है। ओके, तो सॉल्यूशन देखिए, लेट द एक्स जेड प्लेन डिवाइड्स the line joining the points A -1, -3, 4 and B 4, 2, -1 in the k:1 रेशो। सपोज कर लिया अपन ने कि जो एक्स जेड प्लेन है वो k:1 के रेशो में इस लाइन को डिवाइड करता है। ओके, देयरफॉर यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, ओके, देयरफॉर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला द x coordinate of a point on the xz। ओके, अब यहाँ पर आपको सारे कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन रेशो निकालना है, तो रेशो के लिए एक ही कोऑर्डिनेट से हो जाएगा अपना काम। सो देयरफॉर यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द xz प्लेन, ओके, इज गिवन बाय, तो एक्स कोऑर्डिनेट अपन निकालते हैं। ओके, उस पॉइंट का जो कि एक्स जेड प्लेन पे है और इन दोनों पॉइंट्स को k:1 में डिवाइड कर रहा है। देखिए फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा। देखिए ये है मेरा, ओके फ्रेंड्स, दिस इज माय एक्स जेड प्लेन है और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। इसके कोऑर्डिनेट है -1, दिस इज -1, -3, 4 और इधर है 4, 2, -1, ये दोनों पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा, ओके, फॉर एग्जांपल P, तो उसके जो कोऑर्डिनेट है x, y, z, ओके, रेशो है मेरा k:1, तो मैं सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालता हूँ तो मेरा रेशो निकल जाएगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट निकालता हूँ मैं, तो क्या आएगा देखिए, k × 4, 4k, ओके, k × 4 दैट इज m1 × x2 प्लस m2 × x1 दैट इज 1 × -1 अपॉन k + 1 दैट इज m1 + m2। अब ये अपन निकालते हैं, ओके, बट x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द सॉरी दिस इज y, ओके सॉरी, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुई, दिस इज y, ये क्या होगा, y होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। फाइंड द रेशो इन विच xz प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A is -1, -3, 4 and B is 4, 2, -1। ओके, तो आपको क्या निकालना है, आपको रेशो निकालना है कि इस टाइप से कि एक्स जेड प्लेन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है, वो आपको रेशो निकालना है। तो सॉल्यूशन देखिए, वी नो दैट y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स जेड प्लेन इज 0। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था इनिशियली जब मेरा वीडियो मैंने स्टार्ट किया था कि कौन से पॉइंट्स किस कोऑर्डिनेट पे कौन से कोऑर्डिनेट किस प्लेन पे 0 होते हैं। ओके, तो एक्स जेड प्लेन अगर है तो y 0 होता है। तो अब मेरा यहाँ पर y 0 होगा, तो मुझे सिर्फ एक कोऑर्डिनेट निकालना है y, तो मेरा रेशो निकल जाएगा। ओके, सो नाउ यूजिंग
the section formula we have, ओके वी हैव, देखिए इस टाइप से कुछ फिगर बनेगा आपका। देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, मेरा जो फिगर इस टाइप से बनेगा कि ये मेरे पास है पॉइंट ए है, ए के कोऑर्डिनेट है -1 -3 4, और ये जो पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास, देखिए बी के क्या कोऑर्डिनेट है 4, 2, -1, और ये जो मेरा मान लो सपोज दिस इज माय एक्स जेड प्लेन है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट होगा पी, ओके फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट इसको अब मैं सपोज कर रहा हूँ के इज टू 1, ओके, और इसकी जो पॉइंट है x, y, z। अब नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ओके, लेट द पॉइंट P x, y, z, ओके, divides the line joining A, that is -1 -3 4, and B 4, 2, -1 in k is to 1 रेशो। मैंने क्या सपोज कर लिया फ्रेंड्स, मैंने सपोज कर लिया है कि ये जो पॉइंट है, ओके, किस पे, एक्स जेड प्लेन पे, सॉरी हाँ एक्स जेड प्लेन पे जो पॉइंट है दिस माई एक्स जेड प्लेन, वो इन दोनों पॉइंट को k is to 1 में डिवाइड कर रहा है, ओके। सो लेट द पॉइंट P यहाँ पर किस पे, ऑन एक्स जेड प्लेन लिख देता हूँ, डिवाइड द लाइन joining A and B in k is to 1, okay, therefore the y coordinate of P, okay, using the section formula we have, y कोऑर्डिनेट निकालता हूँ मैं इसका, ओके, तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा मेरे पास P का, m1 that is k into y2, तो 2 into k, ओके, प्लस m2 that is 1 और y1 that is -3 अपॉन k plus 1, ओके, इट टाइप निकलेगा इट, बट y कोऑर्डिनेट ऑन एक्स जेड प्लेन, ओके, ऑफ any point is 0, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था ऊपर कि एक्स जेड प्लेन पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, वो किसी पॉइंट का, देयरफॉर इसको मैं 0 से इक्वल करूंगा, तो 2k -3 अपॉन k plus 1, एंड दिस इम्प्लाइज 2k -3 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 3, देयरफॉर k is equal to 3 upon 2, okay, hence the required ratio is 3 is to 2, तो ये मेरा रेशियो आ गया, दिस 3 is to 2, okay friends, now let us take one more question, okay friends, now let us take one more question। देखिए क्वेश्चन क्या है, if the origin of the triangle PQR is centroid, अगर ओरिजिन किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, आपको पॉइंट देखें और उसके कोऑर्डिनेट देखें, तो ए बी सी की वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन देखिए, इट इज़ नोन दैट सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल इज गिवन बाय, जो सेंट्रॉइड रहता है उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं अपन, एक्स कोऑर्डिनेट x1 + x2 + x3 upon 3, y कोऑर्डिनेट y1 + y2 + y3 upon 3, and z कोऑर्डिनेट इज z1 + z2 + z3 upon 3, okay, if the given vertex of a triangle is x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ये हमें पता है, ओके। अब चूंकि हमें क्या दे रखा है, वी हैव गिवन दैट सेंट्रॉइड इज ओरिजिन, तो 0 0 0, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू यहाँ पर मीन्स x कोऑर्डिनेट जो है सेंट्रॉइड का 0 है, और x1 + x2 + x3, तो 2a -4 + 8 अपॉन 3, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, ओके, इधर आएगा -4 + 8, तो +4 बचेगा, और इस +4 को अपन इधर ले जाएंगे, तो 0 -4, दिस गिव्स -4
upon 2 and this is minus 2. Okay friends, so this is the value of a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर -2 आएगी. ओके फ्रेंड्स, अब सिमिलरली y की वैल्यू निकालना है तो y कौन ले लीजिए, तो 2 + 3b + 14 अपॉन 3, दिस गिव्स 3b, ये 0 हो जाएगा. ओके, और ये +14 और +2 तो 16 हो जाएगा. ओके, तो 16 हो जाएगा, तो ये जाएगा उधर जाकर -16. दिस गिव्स b = -16/3. ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं z कोऑर्डिनेट. तो z कोऑर्डिनेट 0 = 6 - 10 और +2c/3. दिस गिव्स 2c = इधर जाएगा 0, यहाँ पर बचेगा -4, तो उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा. दिस गिव्स c = 4/2, that is 2. Okay, so these are the values of a, b, c. Okay, hence a is -2, b is -16/3 and c is 2. Okay, so these are the value of a, b, c. So friends, इस टाइप आप इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके, हो सकता है वो सेंट्रॉइड पे बेस्ड हो सकता है वो सेक्शन फार्मूले पे, हो सकता है डिस्टेंस फार्मूले पे. तो इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है. मैंने आपको सारे क्वेश्चंस उसके बता दिए किस टाइप से करना है आपको. ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू.